of making engines for the space program gained momentum under his leadership. Hello. Ladies and gentlemen, Hello. please put your hands together and welcome Mr. S.M. Vaidya to share his thoughts and how he feels about this landmark moment. He is connected with us from online. Yeah. Thank you very much. My apologies that I am not with you to celebrate this gracious moment. But however, at least the technology, and special thanks to ISRO for providing us various satellites by which we are able to talk to each other, even though I am a little away from the Vikhroli. And that is something, the beauty and the inspiration, what we really got. A few years back. Thank you very much. My apologies that I am not with you to celebrate this gracious moment. But however, at least the technology and Hello. 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 I am audible? Am I? Yeah. Sorry, there was some disconnection problem. So I have reconnected now. special thanks to ISRO for providing. Yeah, so I don't know what has been spoken yet till just now, because I just joined it. There was some technical issues at my place here. I was not getting a proper Wi-Fi connection. However, I'm connected now. So first, let me thank and congratulate entire Godrej team and family, and especially the aerospace team for a successful landing on moon. That was a dream which was shown to us about 8 years back, when first time we had a meeting, and we were told that we are not only going to orbit against moon, but we would like to land on moon and do some experimentation. And it was really a far-fetched idea that time for us to think, because we are only the manufacturers of only maybe a 5 to 10% of that entire launch vehicle or the Yan which has already landed there. However, the scientists of ISRO, they right from day one, I mean, I'm taking you back to 1987, when first time I interacted with them on developing a very small nozzle, AS2 nozzle it used to called as, for VSSC. And the way the scientists came and explained us the entire metallurgy and how it will work, how it will be really taking the launch vehicle to the higher orbits, and how the launch vehicle will eject the satellite out of this launch vehicle. Today we have 104 satellites getting ejected simultaneously, but that time even ejecting one satellite without getting any damage into the right orbit was a big challenge for as a country, India, and specifically to ISRO. So there are many reports and news items you will be reading about Chandrayaan, so I don't want to really once again talk to you about it. But where the Godrej made a really a presence and dent, and how we are different, and how we really looked of what is being talked today way back in 1985 to 1990. I will start with the example of a Vikas engine which we got an order in 89. For a company who is doing almost 10,000 crores of business, to identify a consortium partner MTR who was not doing even 100 crores and give him the equal table, equal share along with us, I think that itself showed to ISRO that Godrej is not a company which is like any other private industry in India. We do respect everybody's expertise, specialties, and we, when agree to work as a partners, then there is no difference. हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, हम equal partners बन के ये दोनों project में काम करेंगे. I think that spirit which was brought in by NPG, JNG, that set the entire mood of aerospace how to work. And then over a period of time, as we had movement of many of our divisions or closure from Vikhroli to other places, तो हम इसके लिए बोलते हैं कि एरोस्पेस का जो सबसे समाधान कारक जो एक बात है, आज जो सब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मेरे ख्याल से ये सबका साथ सबका विकास Godrej demonstrated way back in 91 when the first foundry was closed. And my first colleagues
in aerospace were from foundry. Then we had Prima, which was closed. तो वहाँ से हमारे सब कलीग आ गए. Then appliances moved out. तो वहाँ से कलीग आ गए. So every division came and participated. So that's the first thing, which something unique what Godrej brought while developing this aerospace business. The second example I will give you, in this Vikas engine we wanted to make a expander. JNG NPG asked Mr. Datar to go to US and look into an organization called Grotonus. He went there, stayed there for 2 days. As usual, दूर से देखो, नज़दीक नहीं जाने का, ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछने का. But Mr. Datar was very smart. He drew a few sketches, brought it down here, and he explained it to JNG that this is the way that particular Grotonus expander works, which is must for manufacturing Vikas engine. और मेरे ख्याल से what I heard, I was a very junior engineer that time, so not had access to all the discussions, but what I heard from Mr. Datar, within 5 minutes, JNG said, we will make it in Godrej. We will not import this particular expander. Now just imagine, जिसने आज तक कोई स्टेलाइट मटेरियल, कोबाल्ट बेस्ड मटेरियल has not seen it, we are taking a challenge to build a expander in-house. और जैसे मैंने बताया पहले, सबका साथ सबका विकास, फाउंड्री विच वॉज ऑन वर्ज ऑफ क्लोजर, they were asked to make very critical 12 castings for this particular thing. Machine tools division, they were asked to make entire machining of all the parts. Tool room, they were asked to design this entire hydraulic system, structural system, and then within 18 months all these expander parts were ready. Another 2 months we got our pit done through construction, and the expander was installed. When the director LPSC, Dr. Muthunayagan, came here to see that what is that we have created, he was stunned. He said, this is something what you have done which even we never thought that. We only thought that Vikas engine is to be made, but to make Vikas engine, so many efforts are required to make an expander which is so big and so humongous, and that too you have designed it in Godrej, you have manufactured each and every part in Godrej, you have tested it in Godrej and certifying that this expander will surely produce the Vikas engine. So like that, the entire approach of Godrej towards this space and defense is completely different. It is not a standard traditional approach which has been taken. I will give you another example. Cryogenic engine, जैसे अभी कौस्तुभ साहब ने बताया कि 93 में हम लोग गए थे रशिया में with ISRO team to understand the technology because that was the agreement. However, USSR broke in 1993 and then it went into a separate states like Russia and Ukraine, all that what we are listening now. So US forced Russia not to give technology, and whatever money was paid in lieu of that technology money, we got additional stages, but we never got the technology access. तो जो हाथी की स्टोरी हम सुनते हैं कि किसी ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया, किसी ने हाथी को पेट को हाथ लगाया, किसी ने हाथी को कान को हाथ लगाया, और हर एक जन बताया कि मैंने तो हाथी ये देखा है. तो वैसे ही whatever areas we were asked to go and see and whatever documents we could bring it from there, we made that elephant to really not only create, but उसके अंदर जान डाल के क्रायोजेनिक इंजन भी बना दिया हम लोगों ने. और वही इंजन नहीं बनाया, इसरो ने तो आगे उससे कमाल करके दिखा दिया कि आज जो GSLV Mark II में इंजन लग चलता है, ओरिजिनल रशियन इंजन 7.5 टन का, उसको अभी 9.5 टन तक उन्होंने अपग्रेड किया है. बट उसका जानकारी लेके खुद ने पूरा डिज़ाइन करके अ वेरी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन C25 was developed, and the first cryogenic engine we took almost 6 to 8 years to make the first testable hardware. The next CE20 we did it in just 3 years. बट उसके पहले जो मेहनत थी उसके अंदर एक क्रिटिकल ब्रेजिंग टेक्नोलॉजी है. वो ब्रेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम 100 बार हमने फर्नेस के अंदर ट्राई किया ब्रेज करने का. 100 टाइम्स हमने उसके अंदर सक्सेसफुल पाया नहीं. 2 बार तो हमारा फर्नेस एकदम जरा सी हमारा नसीब अच्छा था, नहीं तो पूरी फर्नेस जल जाती थी. हमारे आर्टिकल अंदर के पूरे जल गए थे,
पूरे मेल्ट होके जो इंजन को शेप दिया हुआ था उसके बदले में कॉपर का पोर्शन हमको दिखाई दिया। उसके बाद में आज तक कम से कम 160, 170, I don't have the latest count now, but I'm sure that it must have come close to 200 ब्रेजिंग साइकिल्स, और एक भी ब्रेजिंग साइकिल फेल नहीं हुआ। बट पहले 100 साइकिल्स एस्टेब्लिश करने के लिए जो मेहनत ली है, खाली गोदरेज ने नहीं, इसरो ने नहीं, लेकिन जब भी हम ये तभी के चेयरमैन थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, उनको बताया कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें सक्सेस नहीं पा रहे, तो बोले चिंता मत करो, ऐसे ही होता है स्पेस में, हम आपके लिए पूरी नेशनल लेवल एक्सपर्ट्स की टीम लगा देंगे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, मिस्टर इंद्रपाल सिंह, माई सेल्फ, we decided along with the rest of the ISRO committees and we identified 25 experts from all over India। उनको सबको उनके ऑफिस ने फ़ोन किया और अगले हफ्ते में 2 दिन को उनको पूरा 24 hours literally we sat along with these 25 experts and completely dissected the brazing technology to the last extent। और उसके बाद में जब भी रशियन लोग ऑफ़र किए कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, व्हेन दे अंडरस्टूड कि हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत ली है और अभी हम सक्सेस करने वाले हैं, तो तभी चेयरमैन बदली हो गए थे, रिटायर हो गए थे डॉक्टर, और माधव नायर चेयरमैन आ गए, उन्होंने भी बोल्ड स्टैंड दिखा दिया। तो मुझे मेरे साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा है, मेरे इंजीनियर्स के ऊपर भरोसा है, आपने हेल्प एक्सटेंड की उसके लिए थैंक यू, लेकिन हम हमारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे। और आज वो हिसाब से 25 टन का जो थ्रस्ट डेवलप करने वाला इंजन है, उसके साथ साथ इसरो के साथ हम लोग एरोस्पेस में आज 200 टन्स का सेमी क्रायो इंजन, विच इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट लिक्विड बूस्टर इन द वर्ल्ड, इज़ अटेम्प्टेड। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, जो ये टीम वर्क है, जो एक साथ में सबको चलने की जो आदत हमको जो इसरो ने सिखाई है, DRDO ने सिखाई है, और हमारे गोदरेज में तो वो होता ही है, तो इसका पूरा फल आज एरोस्पेस इंडस्ट्री देख रही है। मैं आपको एक और एक उदाहरण देता हूँ कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एकेडमियंस को क्या समझता है, प्रोफेसर को क्या, वो तो खाली थ्योरेटिकल नॉलेज बताएगा। जब भी क्रायोजेनिक इंजन हमको बनाना था, 5 एक्सिस मशीनिंग उसमें करना था। 5 एक्सिस मशीन लाने के लिए बहुत सारा जिम्मेदारी लेना पड़ता है डिफेंस के लिए, और इसके लिए आज बहुत सैंक्शंस है, एम्बार्गोज है। वहाँ से जब भी हम लोग निकल के आते हैं तो 5 एक्सिस मशीन मिलता है, लेकिन वो टाइम इतना टाइम नहीं था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हम लोग करेंगे। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने कैसे भी करके अंधेरी साकेनाका के नज़दीक एक 5 एक्सिस मशीन लाया था। लेकिन 5 एक्सिस मशीन लाने से खाली होता नहीं, उसका जो प्रोग्रामिंग है और उसके लिए लगने वाले जो कंट्रोल्स है, सॉफ्टवेयर्स है, वो तभी नहीं थे, भारत में किसी के पास नहीं थे। तो हमको ऐसे मालूम पड़ा कि डॉक्टर सालिनकर करके एक IIT में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है, उनका मैथमेटिक्स का और मॉडलिंग का जो अंदाज़ा है वो बहुत सही है, और इसीलिए हम लोग उनको अप्रोच किए। यू विल नॉट बिलीव कि आज जो हम 5 एक्सिस मॉडलिंग करके उसके कंट्रोल से जो प्रोग्राम बनाते हैं, उन्होंने करीबन 2000 के ऊपर लाइन खुद ने अपने हाथ से लिखे कैलकुलेशन करने के बाद में, और जो हमको 5 एक्सिस कंपोनेंट के जो प्रोग्राम चाहिए था वो बना दिया। फिर उसको टाइप किया गया, तभी तो वो हमारे पास इतने एडवांस कंप्यूटर्स नहीं थे। टाइप करने के बाद में उसको वो जो टेप रीडर रहते थे, वो तभी वो टेप के अंदर पंच किया गया, उसमें बहुत सारे सिंटैक्स एरर्स और आ गए, वो सब निकाले। और 1 महीने के बाद में जब भी ये प्रोग्राम वो आरती इंजीनियरिंग साकेनाका में है, वो मशीन पे चलाया और क्रायोजेनिक इंजन का पहला 5 एक्सिस चैनल मिल्ड कंपोनेंट तैयार हो गया, तो इसरो के लोगों ने और गोदरेज के हम और मेरी टीम ने, हमने तो पूरा उनको साष्टांग नमस्कार डाल दिया कि जो आज कंप्यूटर कर सकता है वो खाली अपने दिमाग से उन्होंने ये पूरा डिकोड किया, उसको हर एक लाइन लिखी। 2000 के ऊपर प्रोग्रामिंग का लाइन उन्होंने लिख दिया, जो कभी उन्होंने इसके पहले प्रोग्राम नहीं किया था। वो तो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे, और उसके बाद में वो जब भी चलाया उसके ऊपर और वो कंपोनेंट बन गया,
आज भी हम लोग वही जो उनके जो प्रोग्राम के जो उन्होंने सिखाया हमको उसका ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज सॉफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स है। तो ऐसे में बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल इतनी डीपेस्ट रूट तक गई हुई थी कि उसमें से बाहर निकलना ऐसा लगता था कि कभी हम निकल नहीं सकते। लेकिन एक एक करके हम लोगों ने इसके अंदर जो पहला जो उसके माइलस्टोन्स अचीव करते गए उसका नतीजा, और मुझे खातरी है कि जैसे मैं गोदरेज के लिए जो मैं खुद ने देखा है इसके लिए इतनी डिटेल में आपको बता सकता हूँ। अगर आप इसरो के कोई साइंटिस्ट को पूछेंगे, चेयरमैन को पूछेंगे या जो आज इंजीनियर्स हमारे पास है, तो श्योरली आप यही सुनेंगे और इससे भी भयानक स्टोरी आपको सुनेंगे जो हम खाली फोटोग्राफ में देखते हैं कि पहला रॉकेट बुलक कार्ट से लेके गया था या साइकिल पे लेके गया था। ये सब ट्रू स्टोरीज़ है, कोई कुकड अप स्टोरीज़ नहीं है। और वैसे ही हम लोगों ने भी किया था। हमारे पास आज जो L&T और वालचंद नगर सॉलिड मोटर केसिंग बनाती है, सबसे पहले मोटर केसिंग किसने बनाई रहेगी तो प्लांट 18 में दातार साहब के अंडर हम लोगों ने जब भी, आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, जो लुधियाना का लेथ मशीन हम लोग लाए थे तभी, और वो लेथ मशीन का टुकड़ा किया था, लिटरली टुकड़ा किया था। टेल स्टॉक एक बाजू में रखा था क्योंकि उतना बड़ा मशीन बनता ही नहीं था, और टेल स्टॉक और जो मेन चक है और बाकी के जो उसका फीड सिस्टम है कटिंग का, उसमें किधर भी कोई भी कनेक्शन नहीं था, एक बॉडी में नहीं थे। वो सब कंक्रीट के ऊपर अलग अलग जगह पे उसमें लगाए और फर्स्ट मोटर केसिंग को मशीनिंग करके हम लोगों ने दिया था। ये सब करने के लिए जो पिच्चू मनी, अभी कौस्तुभ साहब ने नाम लिया, सुरेंद्र नाथ जी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो विज़न थी और उनको जो सपोर्ट दिया हुआ था JNG ने और NPG ने और बाकी पूरी फैमिली ने, कलवाचा साहब है, हमको एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि अगर हमको ये इंजन बनाना है और 3 शिफ्ट में आपको उसको कवरेज देना है इंस्पेक्शन के लिए, आपके जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम तो खाली त्रिवेंद्रम में एक 10, 15, 25 आदमी जानते थे, जहाँ की वहाँ 1000 के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। हर एक को तो हम डायरेक्ट पहचानते नहीं थे, तो एक कोई कोऑर्डिनेटर आपके पास हम लोग रखेंगे, लेकिन आपको ज़रूर है कि उसका रेसिडेंशियल और उसके बच्चे लोगों का स्कूल का अरेंजमेंट आपको करना है। तो विद इन 5 मिनट्स मिस्टर कलवाचा एग्रीड, उनको जो हम सोच रहे थे उससे भी अच्छा उनको एकोमोडेशन दे दिया, पूरी सुविधा दे दी। तो इसरो इंजीनियर्स को कभी ऐसा लगा नहीं, या हमको ऐसा कभी लगा नहीं कि ये इसरो के है या ये गोदरेज के है। दोनों ने ताल मिल रख के, एक ही कंपनी है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऐसे हमने ये पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया था। आज भी ये डिवीज़न ऐसे ही चल रही है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट शायद ये आपको कभी सुनाई नहीं देता था, ये कोई डॉक्यूमेंट किया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चंद्रयान के ऊपर तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप पढ़ लेंगे, बहुत सारे आइटम्स आएंगे, लेकिन जो हिसाब से इसरो और गोदरेज ने आज तैयारी की है, और आज तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, तो जैसे कौस्तुभ साहब ने बताया, मैं भी पूरी गोदरेज एरोस्पेस टीम को बेस्ट लक देता हूँ। ग्लोबल इज़ अपॉर्चुनिटी, और हम लोग पहले सोचते स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन मणि साहब हमको हमेशा बोलते थे इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, दैट्स व्हाट वी शुड थिंक। और मेरे को ये प्रोग्राम के लिए आपने इनवाइट किया और कोई अच्छी बातें सुनाने को, आपको शेयर करने के लिए मौका दिया, इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्रेवो टीम गोदरेज एरोस्पेस, थैंक यू सो मच। कोऑर्डिनेटर आपके पास हम लोग रखेंगे, लेकिन आपको जरूर है कि उसका रेसिडेंशियल और उसके बच्चे लोगों का स्कूल का अरेंजमेंट आपको करना है। तो विद इन 5 मिनट्स मिस्टर कलवाचा एग्रीड